how did you landed up in thinking that let me do a startup? Did not somebody advise कि पैसा खोने वाला काम है या फिर पता नहीं कर पाओगे कि नहीं? That is how actually we are carbon neutral. So वो था कि हमें कोर तक सिर्फ बोलने के लिए ग्रीन नहीं है, एक्चुअली हमें ग्रीन होना था. So this is how we started EV5. We made it a carbon neutral fleet in the first year, and that is where we are today. So we are proud to say on that part कि हमारे ही राइडर्स हैं जिनने पैन इंडिया रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं for right now almost all clients. So there is a anyway demand for the rider. मेरे पास anyway facility है. How can I be your franchisee partner and what is there for me? So I love this line by Aman Gupta, the founder of Boat. अपने एक सेक्टर का गुंडा बनना है, तो ये भी मैं बिलीव करता हूँ. तो ये भी एक रीजन हम मेट्रोस नहीं जा रहे हैं. हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ कोई भी नहीं और ट्रेमेंडस डिमांड है. I agree sir. Sir, I also have a counter question. Actually, just one question for you. उल्टा करते सर, हम थोड़ा होस्ट बन जाते हैं. नहीं सर, JVFL हम पे इन्वेस्ट क्यों किया? Hello everyone, welcome to the episode of The Next Decade. Today we will be talking about interesting opportunity on last mile logistics. Last mile logistics is a very large market which is high growing market, and we have the founder Dev and Pragya with us. They will be talking about the opportunity, how are they solving this pain point, and how are they likely to grow. Maybe the insight for all of us to understand how the business model works, how the venture capital works, and how the value could be created in the last mile logistics. Thank you for having us today. So Dev, Pragya, welcome to the show. Thank you. स्पेशली ये पॉडकास्ट के लिए आप इतने दूर से आए, ठीक है, एक दिन का समय निकाला. थैंक यू वेरी मच. Sir, had to cover. So what we are doing in today episode, we will try to cover because our viewers are most of the time the founders, startup, young entrepreneurs, and the people who are in search of finding a suitable business model and idea and other stuff. As a venture capitalist, what we generally see in the market and we try to tell, but point ये होता है कि वही चीजें अगर कोई एंटरप्रेन्योर खुद कर रहा है वो बताए, वो बहुत रिलेवेंट होती है. बिकॉज यू आर द पीपल हु आर प्रैक्टिशनर, यू आर सीइंग, यू आर लिविंग द ड्रीम्स, राइट. हम जनरली ये कहते हैं जहां पर भी फाउंडर होता है वो कोई भी पेन पॉइंट देखता है, उसको सोल्व करता है और एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल क्रिएट करता है विच क्रिएट अ वैल्यू फॉर एवरीबडी. वेंचर कैपिटलिस्ट एज अ, क्योंकि उनका काम है टू फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ फाउंडर, उनके साथ पार्टनरशिप करे, उन कैपिटल प्रोवाइड करे, दे एग्जीक्यूट वेल, नेचुरली द वैल्यू क्रिएटेड फॉर एवरीबडी. So you people are doing some interesting stuff. So पहले ये बताइए कि आप मीन्स आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन आपका भी, एंड देन हाउ द जर्नी स्टार्टेड. Okay. So I am Devrishi Arora. I am one of the founders of EV5. So EV5 itself says कि electric vehicle के through हम कुछ करना चाह रहे हैं. So we are trying to electrify the last mile delivery section. Very briefly I'll tell you last mile होता क्या है. So basically एक सेम सिटी के अंदर कोई वेयर हाउस, हमारे बिजनेस के अंदर कोई किचन, कोई रेस्टोरेंट या कहीं से भी कस्टमर, एंड कस्टमर के घर तक कुछ पहुंचाना, दैट इज द लास्ट माइल. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर एंड वी आर डूइंग इट इन द ग्रीन वे. तो ये हम EV5 में कर रहे हैं. पर्सनली आई कम फ्रॉम अ हार्डकोर लॉजिस्टिक्स बैकग्राउंड. सो आई एम अ थर्ड जनरेशन ट्रांसपोर्टर कम एंटरप्रेन्योर. हम 1958 से लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में हैं. सो बचपन से वही देखा है, कमिंग फ्रॉम अ वेरी कन्वेंशनल बिजनेस फैमिली. इवन ड्यूरिंग समर वेकेशंस में हम लोग गोडाउन्स पे हो रहे हैं, मार्का मार रहे हैं, लोडिंग करवा रहे हैं. सो इट हैज बिकम माय सेकंड नेचर. सो आई ऑलवेज वांट टू डू समथिंग दैट हैड अ टेक्नोलॉजिकल प्ले एंड समथिंग दैट हैज अ ह्यूज मार्केट, ग्रो कर सके, स्केल कर सके. And that is why we thought of starting something on the last mile sector.
So very briefly, this is what I would like to say. What Devrishi is all about, coming from a hardcore logistics side and getting technology together on the last mile sector. तो आपका जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जी। एंड आई गेस ट्रांसपोर्ट बिजनेस इज मोर ऑफ अ कन्वेंशनल बिजनेस, जी। ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन पॉइंट ये होता है कि जींस में इट इज मोर ऑफ अ धंधा, राइट? सो व्हेन एज अ फैमिली somebody does a real dhanda, wherein there is a business, there is revenue, then there is a cost structure, and then profit, right? And at the end of the day, you have something, right? And you invest in more vehicles, more trucks, or transporter, or you live with others, right? Other business. So it naturally will have a progression. How did you landed up in thinking that let me do a startup? Did not somebody advise कि पैसा खोने वाला काम है या फिर पता नहीं कर पाओगे कि नहीं? So what made you to think of के let me pick up this idea, and वो जर्नी कहाँ से चली? Can you think of what makes you to do it, and then maybe early time frame? Sure. Sir, basically, I come from Surat. Surat is a huge textile hub. और वहाँ पे एक दाने से लेके धागा बनने से लेके फैब्रिक और फिनिशिंग तक एक ही प्रोडक्ट इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, सेम सिटी लॉजिस्टिक्स 3 व्हीलर 4 व्हीलर्स के थ्रू होता है। तो वो देख रहा था कितना ह्यूज मार्केट है, ऑलरेडी बचपन से देखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो एक वेंचर शुरू किया था, लाइक आई सेड, कमिंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है, खुद का कुछ करना है, क्यों फैमिली बिजनेस में ही लगे रहना है। So that is how I started Big Daddy Logistics, जिसके अंदर again technology and tech enabled everything, where हम इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स शुरू कर रहे थे। आज जो पोर्टर कर रहा है, आप ये कह सकते हैं कि मैं वो प्रोजेक्ट शुरू किया था, बट द डिफरेंस वाज फॉर मी वाज पे फॉर व्हाट यू लोड, बिकॉज एक इंडस्ट्री लास्ट माइल की मुझे पता चल रही थी, बट अगेन दैट इज इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स। सो आई स्टार्टेड दैट बिकॉज आई कुड सी अ ह्यूज पोटेंशियल। And as I said, coming from a logistics sector, I understand the fleet business, बचपन से देखा है, and understand how a blue collar workforce thinks. Because end of the day, the most difficult asset to manage is a human being. और आप last mile blue collar workforce के बिना नहीं कर सकते, और a gig workforce आप बोल सकते हैं, correct? So शुरू किया, within a month multiply कर दिए बहुत सारे vehicles, but Corona hit us. And it was the worst time of, I think, everyone throughout the globe. And B2C sector tha, I had to shut it down. And I was not funded. It was more my own hard-earned money. So it was a huge setback for me. And that was the time where, क्या होता है, कोरोना है, घर बैठे हो, दिमाग चलता रहता है, बिजनेसमैन हो, कुछ ना कुछ तो चलेगा। So हम ये रियलाइज किया कि पूरी दुनिया रुकी हुई है, but Swiggy is delivering. Amazon is delivering, Big Basket, Flipkart, all of these guys are delivering. तो वहां ध्यान गया, अरे यार दुनिया खड़ी हुई है और ये लोग डिलीवरी कर रहे हैं, बॉस थोड़ा स्टडी करते हैं। स्टडी करना तब शुरू किया, पता चला क्या हो रहा है, क्या बड़ी मार्केट हो रही है, जोमैटो स्विगी क्या ग्रोथ कर रहे हैं, बिग बास्केट कहाँ पहुंच गया है, टाटा की कंपनी हो गई है। सो ध्यान वहां पे चलता गया, आता गया, एंड आई डिसाइडेड कि यार ये B2C तो अब हम नहीं करेंगे, कुछ B2B में करना है। फर्दर मोर उसी समय क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन थोड़ा शुरू हो गया था, एंड गवर्नमेंट का पुश आ गया, फेम सब्सिडीज आ गई। अब जब गवर्नमेंट इतने हैवी स्केल पे पुश कर रही है, तो ये दिस इज हियर टू स्टे। प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ट्रूली ग्रीन कब होती हैं, जब आप उसको लॉन्ग रन के लिए यूज करते हैं। तो B2C में तो पॉसिबल नहीं था, ये समझ आया, तो B2B में करने का मन था। So that is the time when I reached out to Pragya. So I know Pragya, I don't know, 12, 13, 14 years, very old friends. So Pragya and her husband Vineet are already into lithium-ion battery manufacturing. तो मैंने कहा let's understand कि बैटरीज बना रहे हैं, उसका टेक्नोलॉजी क्या है, EVs के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे वर्क करते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे, एज आई टोल्ड यू, आई अंडरस्टैंड फ्लीट। तो एफिशिएंसी निकालना, यूटिलाइजेशन निकालना, मैक्सिमम आप कैसे उसमें से धंधा बना के निकाल सकते हो, तो फ्लीट का समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज मनी, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, TCO, वो ₹1 के नीचे रखना है पर किलोमीटर। सो दैट इज वेयर आई रीच्ड आउट टू देम, एंड कोइंसिडेंटली वो भी कुछ ऐसा सोच रहे थे, एंड आई वुड वांट प्रज्ञा टू टॉक अबाउट इट कि वो क्या सोच रहे थे और कैसे हम मिले और कैसे, जैसा आपने पूछा, शुरू हुआ ये बिजनेस। मुझे तो ऐसा लगा कि प्रज्ञा का पार्ट आप ही कवर कर लें। इट्स गुड, यू स्टॉप समवेयर। Okay. So my story is a bit different.
I and my husband, we started this solar energy company long back, just after our marriage, 2013. So that was our venture. So basically, we both have a very strong belief towards being sustainable, because that is something that's very core inside कि हमें something for this greener future करना था, ठीक है. So that was our first step when we started with green energy. And almost 2 years prior to lockdown, we started another venture that was into this battery manufacturing, as you said. And so lockdown happens to be the year when I delivered my second kid. And that was somewhere life changing event tha, because that made us more pro towards being sustainable and doing something. See, this lockdown was a black swan event. Once in a lifetime it happens, but climate crisis is real, right? And you just can't read in the newspapers कि कुछ हो रहा है unless and until you don't take steps towards it, right? Lockdown was that one event which actually made me realize कि for the future generation that is coming in, right, हमें भी कुछ तो करना है, right? And that was something. So Renon, the battery company, we were crunching numbers कि उसका future क्या होगा. We just started with something, but अपने eventually we start understanding ना कि इसको और कहाँ grow करे, क्या करे. So we understood कि yes, batteries are something जो B2B में ही deploy होने वाली हैं, ठीक है. B2C market कभी इसके लिए इतना बड़ा बन नहीं पाएगा. So B2B was the market. B2B क्या होगा? When these fleet companies start buying these batteries, right? 2020-21 has been the year when actually all of these companies, okay, they came up with their announcements, bigger ones. 2025, 2030, we all will go green, right? हर एक के पास 10 से 25,000 की fleet है. They don't own those fleets, but they have those many number of riders working with them. आज Zomato ले लो या Swiggy ले लो, Flipkart ले लो, उनके पास ये मिनिमम नंबर ऑफ फ्लीट था आज से 2020-21 के टाइम पे. सो अगर वो उतनी बड़ी फ्लीट को एक्सपोलेट होते जाएंगे जो ईयर्स पे, उसको ग्रीन करना चाह रहे थे, तो क्लियर था कि यस, बैटरीज की तो रिक्वायरमेंट ह्यूज होने वाली है, राइट? सो दैट वाज समथिंग जो हमें समझ आ गया कि ठीक है, बैटरी का फ्यूचर तो मुझे समझ आ गया. So what happens now? Just something is written on the cards, right? Correct. So things fall in place one by one. So मेरा बैटरी पे रिसर्च करना और इसका लॉजिस्टिक्स पे रिसर्च करना, and then meeting us on a point that he comes up with an idea. So this is definitely his idea कि चलो green logistics करते हैं, ठीक है? And that was something because we were looking forward कि कुछ करना है. So eventually these cards met and we started EV5, and the only vision was कि हमारा USP यही है कि we are very pro towards being sustainable. So हमें इसलिए green vehicles से start करना है. So अगर आप देखने चाहेंगे, वैसे ये green vehicles completely green नहीं है, right? अगर जब तक हम grid से इसको charge कर रहे हैं, still we are polluting it, right? So in the first year itself, we went a step ahead. हमने हमारे carbon emissions calculate किए. उतने carbon emissions के लिए we took a step and we bought some green credits from the market. That is how actually we are carbon neutral. So वो था कि हमें core तक सिर्फ बोलने के लिए green नहीं है, actually हमें green होना था. So this is how we started EV5. We made it a carbon neutral fleet in the first year, and that is where we are today. Okay. So what means you joined as a co-founder and Yes, right. partner into the startup. Then in a startup, how the responsibilities are divided? Okay, so she's being very humble. She's a CA, by the way. Okay. She's a CA by qualification. So having a CA co-founder, I think it's a boon to us, because हमारा जो मॉडल है, अगर स्केलेबल मॉडल बनाना है, so you can't start buying vehicles, क्योंकि आपका केपेक्स इतना हैवी हो जाएगा कि आपकी लिमिटेशन आ जाएगी. So financing is something that you need to do. Furthermore, आप अगर नई कंपनी हो और स्पेशली स्टार्टअप हो, तो बैंक आपसे दूर भाग जाते हैं. So you need to find other alternatives like NBFCs, some fintech firms, some fleet operators kind of story, financing kind of story. So उसके लिए हमें एक अच्छा मॉडल क्रिएट करना था, where we could initially find ultra HNIs और HNIs जो कुछ बिलीव करे, उनको कुछ रिटर्न मिले. तो प्रज्ञा का नॉलेज बहुत वहां पे काम आया. पूरा मॉडल उसने क्रिएट किया, 3 years का पूरा बनाया. You get 40% depreciation if you keep your books heavy. किसी को पता नहीं था, इनको पता था. So जब हम साथ जुड़े तो बहुत क्लियर डिमार्केशन था, कमिंग फ्रॉम अ लॉजिस्टिक्स सेक्टर
जो भी ऑपरेशंस के साइड का रोल है, क्लाइंट एक्विजिशन हो गया, नेगोशिएशंस हो गए, कुछ फ्लीट ट्रायल्स हो गई, एंड अगेन नॉलेज ऑफ बैटरीज की कौन सी केमिस्ट्री यूज करनी है वो मुझे उनसे मिला, बट देन आई स्टार्टेड द R&D ऑन दैट एटसेट्रा। तो वो फिर मैंने उठा लिया जो मेरा फॉर्टे था, वो मुझे क्यों करना है जो मेरा फॉर्टे नहीं है। एंड लाइक आई सेड, इट वाज अ boon that a CA is your co-founder, and then she took the whole load of financing। ये तो बहुत इश्यूज आते थे, तो अब मैं इसको बहुत फॉन्डली बुलाता हूँ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ EV5। करेक्ट, थोड़ा सा मेरे को बाउंस आता है। सर ये मारवाड़ी, हाँ, ठीक है, प्लस CA, सही है, ठीक है। हाँ, सो अगर इसके ब्लड में ऑपरेशंस या फ्लीट लॉजिस्टिक्स है, हमारे ब्लड में नंबर्स है, सही बात। ठीक है। सो स्टार्टिंग से लेके टिल आफ्टर माय मैरिज एज वेल, सो हमारा बैकग्राउंड हैज बीन टेक्सटाइल्स, ठीक है, एंड माय फादर इन लॉ हैज आल्सो बीन इनटू दिस टेक्सटाइल्स। सूरत इज ऑल अबाउट मिल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस वाज वेरी क्लियर कि नंबर्स पे जो होल्ड है ना वो होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर टॉट, ठीक है। धंधा मारवाड़ी के लिए जो है ना वो बालियां गिनती हम बोलते हैं कि उसको हाथ पे आता है वो चीज करना, एंड दैट इज इन द ब्लड, करेक्ट। बट eventually that is what has clicked for us as well, क्योंकि any business, ठीक है, आज के लिए एक रैट रेस लगी हुई है जहाँ पे स्टार्टअप इज ऑल अबाउट बर्निंग एंड यू नो स्केलिंग एंड एवरीथिंग। बट क्योंकि हम दोनों उस बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पे हमें बहुत हमारे बिजनेस की कोर एथिक्स में कहीं ना कहीं numbers are there, profitability has to come, and you have to scale in a gradual manner and not just spread your wings all around, okay? So that has something has been the core ethics of us, and initially first 1 or 2 years mein we did not go expanding to like a fleet size of 1,000, right? हमें पता था we have to go slow, experiment with a small number of vehicles, because आपको कुछ भी करना है you won't be ending up with a lot of huge loss या burn, क्योंकि आप एक small number पे experiment कर रहे हैं। हमने ये जो भी business start किया था, this was the first in a kind जो हमारा model था। Even if I say कि हमें एक financier ढूंढना था, मैं किसी को बोलूँ even an HNI कि मुझे 1000 vehicle finance करके दे, वो नहीं हाँ बोलेगा, ठीक है। But we started with a small fleet की start financing some 20 vehicles, 50 vehicles, right? That is not a big exposure. So this is how this thing started, going slow, small, because हम जिस city से भी आ रहे हैं, right? There was no one, even the clients को approach किया, we made them understand this model, ठीक है। तो आज अगर Swiggy announce भी कर देता है at a national level कि उसको carbon neutral होना है, you want to convert fleet to electric vehicles, ठीक है। But when it comes to tier 1, tier 2 cities, ठीक है, जहाँ पे इंफ्रा ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्लाइंट का पहला सवाल ये है कि कैसे करोगे, करेक्ट, राइट? सो ये जो कैसे करोगे था, वी मेट इनिशियली अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। बिग बास्केट वाज आवर फर्स्ट गो टू अपॉर्चुनिटी हु वाज रेडी टू टेक दिस रिस्क, ठीक है। सो 1 or 2 मीटिंग्स के बाद में ही इवेंचुअली गेव अस अ चांस कि ठीक है प्रूव करो, राइट? बिकॉज एट द एंड यू नीड दैट वन सिंगल हैंड बिल्डिंग। अपन को एक क्लाइंट दे देता है ना, उसके बाद तो बहुत सारे कार्ड्स आपके ओपन होने लग जाते हैं। So एक मिनट मैं स्टॉप करूंगा। So Big Basket was your first client. From day one you knew that if I do it, I may be relevant for Big Basket, then Zomato, Swiggy, all e-commerce company, and then maybe now quick commerce, right? So it was thought of at that point of time. But ये करने के लिए means step 1, 2, 3, 4. What were the step you thought of, and where are you as of now? So step wise, eventually अगर हम कोई भी business start करते हैं ना, आप एक एंड गोल लेके चलते हो, ठीक है। सो हमारा एंड गोल बहुत क्लियर था कि यस हमें लास्ट माइल डिलीवरीज को ग्रीन करना है, ठीक है। अब इस एंड गोल को देन यू एक्चुअली बाइफर्केट इनटू कि ऐसा तो नहीं है कि और कोई इंडिया में कर ही नहीं रहा था, ठीक है। सो हमारे पहले भी ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो आए और दे हैड टू क्लोज देयर बिजनेसेस फॉर सम अदर रीजन। सो वो स्टडी ने हमें यही सिखाया कि उनके मिस्टेक्स क्या थी जिनको हम ऑब्वियसली रिपीट ना करें। सो हमारा जब हमने मॉडल ड्राफ्ट किया, नंबर 1 वाज बीइंग क्या कहते हैं इसको, नहीं एसेट लाइट, हाँ एसेट लाइट, क्योंकि एट द एंड एक व्हीकल अगर लाख रुपए की है, आई कांट गो कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। तो सो नंबर 1 हमारा प्रिंसिपल फिक्स हुआ कि चलो अपन व्हीकल्स में ₹2 नहीं डालेंगे, वी हैव टू फाइंड पीपल हु विल इन्वेस्ट फॉर अस। सो इवन बिफोर वी वेंट इनटू दिस फंडिंग, हम ऑलरेडी अपने आप को फंड ही करवा रहे थे, व्हीकल्स भी तरह से फंड ही करवा रहे थे हम,
राइट. तो वो तो हमारा फर्स्ट स्टेप 1 हुआ. स्टेप 2 हैपेंड व्हेन क्लाइंट्स किस तरह से ढूंढने थे. ठीक है. सो इट शुड नॉट बी अ बिजनेस जहां मैं क्लाइंट पर डिपेंडेंट हूँ. आई हैड टू फाइंड अ मॉडल वेयर आई हैव मल्टीपल क्लाइंट्स. तो आज एक के पास बिजनेस नहीं है, दूसरे के पास है. मेरा बिजनेस इफेक्ट नहीं होना चाहिए मेरे क्लाइंट की वजह से. सही बात है. सो ये कोर एथिक्स पे अगर हम चले थे ना, तो उस वजह से वी अप्रोच्ड क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स. लॉजिस्टिक्स का भी क्लाइंट है, फूड का भी क्लाइंट है, ग्रोसरी का भी क्लाइंट है. ठीक है. सो किसी पॉइंट पे अगर लॉजिस्टिक्स डाउन है, मेरे को दूसरे सेक्टर ने बचा लिया, मेरे बिलिंग्स चलते रहेंगे. So your same riders are used for all your partners. सो दैट इज अ ब्यूटी. बेसिकली अगेन बिजनेस 101 रिस्क मिटिगेशन. हम्म. तो क्विक कॉमर्स भी कर रहे हैं, ई कॉमर्स भी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि वी आर ऑल ओवर द प्लेस. नहीं, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? Oh yes, that is the best part. So हाँ. technology is something. I mean, it is beautiful in a way. कि बन गया तो बॉस क्या बन गया, और अगर ढीठ की तरह नहीं बना तो वो बग्स आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे. एंड एंड ऑफ द डे इन एनी बिजनेस अगर आपको स्केल करना है और क्विकली स्केल करना है तो यू नीड टू हैव टेक्नोलॉजी, एज सिंपल एज दैट. लेकिन अगर टेक्नोलॉजी बनानी है, एक्सपीरियंस क्या है बॉस, आपको उस पर डालना क्या है. हवा में आपने कुछ बना दिया पर ग्राउंड पे कुछ और चल रहा है. सो लाइक शी सेड, पहले हमने क्या किया, पहले हमने कहा फाइनेंसिंग सेट करो. फ्रेंड्स फैमिली को इकट्ठा किया, बहुत पुश किया. भाई सब बिजनेसमैन हैं, फ्रेंड्स फैमिली के अंदर भी एक एक चीज वो ध्यान रखते हैं. व्हीकल हमने किसी तरह प्रोक्योर करने की सेटिंग कर ली. बाय नहीं किए, क्लाइंट स्कोर किया, फिर बाय किए. तो वो कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस रहता है. तो वो पहला स्टेप था. तो पहले हमने विदाउट टेक्नोलॉजी यूज किया मैन्युअली टू अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज. ग्राउंड प्रॉब्लम्स क्या है, मेरा जो राइडर है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, मेरे को ट्रांसपेरेंसी मिल रही है कि मुझे नहीं मिल रही है, मेरे को एनालिटिक्स क्या चाहिए. क्योंकि अगर मेरा एक राइडर 10 ही डिलीवरी कर रहा है तो वो मेरे प्रॉफिटेबल नहीं है. उसको 25 डिलीवरी करनी है. उसके लिए हमें उसको क्या क्लैरिटी देनी पड़ेगी, मुझे उसके लिए क्या उसको फैक्टर्स लाके देने पड़ेंगे जिससे वो उतना काम कर सके. So technology does that part. सॉरी, वो टेक्नोलॉजी करती है काम. यस. तो ग्राउंड से शुरू किए, प्रॉब्लम सारी समझी, अब समझ आ गया कि मुझे ऑटोमेट क्या करना है, मुझे मेरी मैन पावर कहाँ हटानी है. बिकॉज इफ आई एम इंफ्रा हैवी, इफ आई एम मैन पावर हैवी, देन आई विल नेवर बी एबल टू स्केल. तो टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमने ग्राउंड से शुरू किया, प्रॉब्लम समझी, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी पार्ट. सो इफ फास्ट फॉरवर्ड टुडे, so all our feed is IoT enabled. One, we have our own dashboard, we have our own analytics, we have all the riders, they have to log in through their app, the KYC through the app. तो कोई भी राइडर को टाइम वेस्ट नहीं होता है. सबसे पहले बात, राइडर क्या है, पेशेंस नहीं है, वो भाग जाता है. कैसे पता चला, ग्राउंड पे काम करके. सर मैं खुद भी डिलीवरी करने गया हूँ, ऐसा नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज. ऐसा भी हमने एक समय देखा, राइडर बोलता मैं काम पे नहीं आऊंगा. क्यों नहीं आऊंगा, लोड नहीं मिल रहा है मुझे. कोई बात नहीं सर, बिग बास्केट मेरा पहला क्लाइंट था, मैं खुद डिलीवरी करने गया. तो मुझे पता चला कि क्या प्रोसेस है, उसका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ हम ऑटोमेट कर सकते हैं. तो वही चीज हमने हमारे टेक पे वर्क करी, और इसी तरीके से स्लोली ग्रेजुअली करते करते आज हम यहाँ पहुंचे. अभी हमारे इन हाउस टेक्नीशियंस होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, बिकॉज वी हैव अ हब मॉडल. सो राइडर्स आर नॉट अलाउड टू टेक व्हीकल्स टू देयर होम्स. उनको मेरे हब पे आना है. इट्स 3000 to 7000 स्क्वायर फीट एंड इनसाइड द सिटी, नॉट आउटसाइड द सिटी. करेक्ट. तो हब पे आना है, व्हीकल लेनी है, डिलीवरी करने जाना है. मे बी दे हैव टू कम बैक इन द आफ्टरनून, टेक अ ब्रेक, आप टॉप अप चार्ज कीजिए, फास्ट चार्ज कीजिए, बैटरी स्वैपिंग कीजिए, गो आउट फॉर डिलीवरीज, कम बैक एंड पार्क इट बैक. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम एनी नीड यू हैव, गाड़ी को ठीक करना है, इंजन पिंजर ढीले हैं, टायर प्रेशर देखना है, सो वो सब टेक्नीशियन मैकेनिक्स करते हैं. लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज आपकी फ्लीट बढ़ती जा रही है, और आप कितना मैन पावर बढ़ाओगे, आप कितना स्टॉक को देखोगे, कितना एफिशिएंसी पे जाओगे, यू नीड टेक अगेन. सो नाउ वी हैव आल्सो मेड अ टेक्नीशियन ऐप. हमने जॉब कार्ड ही हटा दिया है, जो भी कुछ होगा ऐप से होगा. क्लैरिटी आ गई, लीकेज रुक गया, आपका स्टॉक कंट्रोल में आ गया, खर्चे कंट्रोल में आ गए. सो दैट इज हाउ we built up our tech today, and it is still getting better and better and better. So, technology. So this is a part of our business, sir, because at the end, manpower हम handle कर रहे हैं, that is our core, right? But उसी manpower को handle करने के लिए अगर मुझे manpower में invest करना पड़ेगा, so I'm not making a business. So eventually I have to reduce my manpower cost. And technology का beauty ये है कि आपका manpower वो eliminate कर देती है. Right. So technology again is not something जो आप कहीं से पढ़ के आ सकते हो, ठीक है, and there is no bible onto it कि नहीं, वो करते करते सीखते जाते हो कि भाई टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन आपको अगर डोमेन अंडरस्टैंडिंग है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम,
चाहे वो आपके पार्टनर्स लेवल की हो, विच कुड बी स्विगी, जोमेटो, ई कॉमर्स कंपनी, कॉमर्स, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी के साथ आपकी कॉन्फ़िगर कैसे होगी, उनकी डिमांड आप ले पाते हो कि नहीं, राउटिंग अच्छे से कर पाते हो नहीं, अपने लोगों को ट्रैकिंग कर पाते हो कि नहीं, एंड रूट ऑप्टिमाइजेशन है, और एंड द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे, इफ द डिमांड इज ग्रोइंग, द राइडर्स आर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ इन, तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी डे वन में नहीं पता चलती है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई होप See, we gradually have grown with this. करेक्ट. हमने जैसे हम कहते हैं ना, हमें अपना स्कोप डिफाइन करना होता है, ठीक है. इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर जहां हमारा वो स्कोप डॉक्यूमेंट जो है ना और डिफाइन होता जा रहा है. वी आर जस्ट एडिंग एलिमेंट्स टू आवर टेक, बिकॉज टेक्नोलॉजी बेसिकली इज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, राइट. प्रॉब्लम अराइज होगी एज एंड व्हेन यू ग्रो. जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसका सोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ योर टेक्नोलॉजी. सो इट्स नेवर लाइक कि एक वेबसाइट बना के रख दी स्टैटिक मोड पे और वो वैसे चलती रहेगी, ठीक है. इट्स कंटिन्यूसली डायनामिक. रोज हम एवरी सिंगल वीक when we meet our tech guys, we have a new problem कि इसको solve करके दो, and they come up with a solution कि हाँ let's tweak it this way, and this way हम writers की ये information को भी gather कर पाएंगे. So what the beauty of these IoT devices, जब हमने start किया था, this IoT device was brought into existence, बहुत nascent stage पे था, right. हमें नहीं पता था कि we'll be able to control this fleet in this manner, but आज के दिन पे the devices have evolved and you can track कितने बार वो व्हीकल रुक रही है. You can stop the vehicle from your dashboard itself. You know कि वो किस स्पीड पे चला रहा है, तो you can train him कि भाई तू अगर 45 की स्पीड पे चलाएगा तेरी व्हीकल बेटर चलेगी, 55 मत लेके जा, राइट. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो भी इवॉल्व हो रही है. द सेक्टर हम जिसके अंदर हैं सर, ये दिस इज नॉट अ मैच्योर्ड सेक्टर. द इंफ्रा अराउंड दिस, ऑल ऑफ दिस एंसिलरी इंडस्ट्रीज हमारे साथ ही ग्रो हो रही है, राइट. एंड दैट इज हाउ, बीइंग फ्रॉम अ सिटी जहाँ कुछ नहीं था, no one even knew how electric vehicles are, you know, working, functioning. Thanks to our model, हमने पूरा इंफ्रा बनाया अपने लिए. Even if there is no battery swapping, we got some extra batteries. हमारे hubs हमारे battery swapping stations के जैसे काम कर रहे हैं, right? So that is a beauty यहाँ पे कि we decided to be in those cities जहाँ पे EV infra नहीं है, right? Because वो हमारा मोट है. हमारा मॉडल हमें इंफ्रा क्रिएट करने देता है, and we don't want to go into those cities जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ है, बिकॉज वहाँ रैट रेस है, ठीक है. वहाँ ऑलरेडी बहुत प्लेयर्स हैं, एंड वहाँ हमारा मॉडल नहीं काम करेगा. इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट हब्स एज ही मेंशन्ड, ठीक है, वो हब का जो कॉस्ट आएगा फ्रॉम टियर 1 सिटी और टियर 2 सिटी इज नॉट पॉसिबल व्हाट अ मेट्रो वुड डू, राइट. बट अ राइडर या मेरे क्लाइंट्स फ्रॉम दिस टियर 1 सिटीज रिक्वायर एनेबलर्स लाइक अस, क्योंकि आज के दिन पे the total volume of last mile deliveries from tier 1 tier 2 has surpassed what metros have, correct, right. So अगर ये volume है जिसको मैं cater करने का हम plan कर रहे हैं, so we have huge market, and that is what the vision is. Coming 5 years में at least 100 cities में we want to spread ourselves. So we keep on hearing pitches from the founder. Only the thing, whenever there is a large market, and most of the founders are working on large market, so by third or fourth slide they will put it as if it's a huge scalable business model, right? So now I wanted to understand from you, आपके लिए scalable means what makes it scalable? आप EV5, what makes it scalable? So eventually क्या होता है ना, हम कोई भी बिजनेस बनाते हैं, we always have a vision, ठीक है, क्योंकि इसको ग्रो तो करना है. Startup is all about, you know, having a bigger growth, bigger vision, ठीक है, वरना वो eventual जो traditional businesses stay in the same city, so that is not we were looking forward for. So हमने कुछ parameters set किए थे हमारे लिए, some pillars which are very essential for us to scale. So first and foremost होता है anyway demand creation, right. So eventually in the last 2 years we have created multiple client platforms, right. तो demand create हो गई. आज उन client के साथ अगर मेरे contracts pan India है, so मुझे जिस city में जाना है I can start in that city, so मेरी demand ready है, ठीक है. The second comes is infra, right. So we have not less than 20-25 OEMs हमने test करी हैं vehicles को लेके, because fleet is the most important backbone आज हमारे लिए. So we know which vehicle will work for us. Quite R&D has been done on the
बैटरी साइड एज वेल, ठीक है. सो इंफ्रा समझ आ गया. देर आर ऑल्सो एंसिलरी इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंसिलरी कंपनीज जो एक इंफ्रा बनाने के लिए जरूरी है, बी इट द स्पेयर पार्ट्स, बी इट बैटरीज, बी इट ऑल ऑफ दी थिंग्स, टेक्नीशियंस के लिए साथ लेके एवरीथिंग. तो वी हैव क्रिएटेड दैट बैकबोन एज वेल, ठीक है. सो अब मुझे जब किसी और सिटी में जाना है, आई हैव माई पार्टनर्स रेडी एंड दे विल स्टार्ट इन दैट सिटी, राइट. सो इंफ्रा भी हमारे हाथ में आ गया, ठीक है. सो उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी, राइट, क्योंकि सिटिंग हियर इन सूरत, ठीक है, इफ आई वांट टू नो कि अहमदाबाद में मेरा कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट इज ओनली पॉसिबल क्योंकि मुझे टेक दिखाएगा कि मेरी पर डे मेरी व्हीकल कितना अर्न कर रही है, कितने नंबर ऑफ डिलीवरीज कर रही है, राइट. सो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया. वी इन्वेस्टेड ऑन द IoT डिवाइसेस एंड ऑल ऑफ दीज. एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे ऑल ऑफ द पैरामीटर्स, ठीक है, सारे एनालिटिक्स हमें एक जगह पे दिखे, राइट. सो दिस वॉज रेडी. टेक्नोलॉजी आज मैं मानती हूँ कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए इसके बिना तो ग्रो करना इम्पॉसिबल है, ठीक है. सो दैट वाज समथिंग वी अंडरस्टूड लॉन्ग बैक एंड क्वाइट वी बोथ नॉट कमिंग फ्रॉम टेक बैकग्राउंड्स एज वेल, स्टिल इतना समझ आ गया था कि इसके बिना कुछ होगा नहीं, ठीक है. सो ग्रेजुअली वी हैव लर्नड अ लॉट, वी हैव इवॉल्व्ड इनटू इट एंड वी क्रिएटेड दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे पता है कि प्रॉब्लम और सोल्यूशन होगा तो ही हम स्केल कर पाएंगे, राइट. सो टेक्नोलॉजी हो गया रेडी. फिर आते हैं SOPs. So in January 23, so we started with Ahmedabad. हम पहले सिर्फ सूरत में थे. So जब अहमदाबाद स्टार्ट किया, so we understood कि अगर किसी नेक्स्ट सिटी में जाना है, we need definite set parameters, ठीक है, क्योंकि हर सिटी में हम दोनों जाएं और वहाँ पे सिटी स्टार्ट करें, ये पॉसिबल नहीं है. दैट्स नॉट अ स्केलेबल मॉडल. स्केलेबल मॉडल इज कि मैं सूरत में मेरे HO में बैठ के भी 10 सिटीज और स्टार्ट कर सकूं. सो दैट वाज रिक्वायर्ड. सो वी क्रिएटेड अ टीम. सो हमारा टीम में वी हैव हेड, उसके नीचे हमने बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं. सो हमारा टारगेट क्या है, एक सिटी का वो हेड क्रिएट करना, ठीक है. उस हेड को फिर हम उतना पावर देंगे कि वो अपने आसपास के लोगों को एक खड़ा करेगा एंड देन द सिटी हैज टू वर्क. सो वो SOPs हमने सेट कर लिए, ठीक है. नाउ वी आर एट दैट स्टेज जब हमारे ये सारे पिलर्स रेडी हैं, वी आर इन दैट स्केलेबल मॉडल जहाँ पे सब कुछ आज के दिन पे आई नो कि गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर मुझे 5 cities ओपन करनी है और उसके नेक्स्ट 5 years के अंदर वी वांट टू कम इनटू 100 cities. वी हैव आवर होल प्लान रेडी. So another thing I'll add. So what is another thing that gives us more confidence on scaling? The control over the value chain. मतलब I'm not dependent on a battery swapping infrastructure company like a BaaS model. I'm not dependent on a fast charging company. I'm not dependent कि मेरी सिटी में आके कौन बैटरी स्वैपिंग स्टेशन ओपन करेगा, मेरी सिटी में आके कौन फास्ट चार्जिंग स्टेशंस ओपन करेगा. मैं कब तक वेट करूंगा? लोग तो मेट्रोस के पीछे लगे हुए हैं. नॉन मेट्रोस तो कोई देखता ही नहीं जल्दी से. और कब लगेगा? इंडिया इज ह्यूज. सो द कंट्रोल ओवर द वैल्यू चेन फ्रॉम सोर्सिंग ऑफ द राइडर टू मैनेजिंग द EV is under control, is under us. And I think we are the only company or a startup in India who's running such a model. So that gave us more confidence कि भैया टेक्नोलॉजी सेट हो गई, प्रोसेसेस सेट हो गए and the value chain is under control. तो अगर मैं कोई नई सिटी में जा रहा हूँ, लेट्स से मैं अभी फ्रेंचाइजी पे वर्क कर रहा हूँ, वी वर्किंग ऑन अ फ्रेंचाइजी मॉडल. अगर मैं कोई फ्रेंचाइजी पार्टनर को लेके आता हूँ तो एंड ऑफ द डे डिमांड जनरेशन तो चलो एज प्रज्ञा मेंशन मेरे क्लाइंट्स करेंगे, पर क्लाइंट्स को भरोसा उन पे क्यों आएगा? बिकॉज एंड ऑफ द डे इज द सर्विस इंडस्ट्री. द बेस्ट पार्ट ऑफ अ सर्विस इंडस्ट्री इज इट कैन नॉट बी कॉपीड, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड. तो उनको पता है देव एंड प्रज्ञा रनिंग EV5 खुद चला रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं and they're happy about it. But in another city there's a franchisee partner, वो देगा कि नहीं? So that is where the technology, the SOPs and the value chain control comes into play. वो चाह के भी ये खराब नहीं कर पाएगा because टेक्नोलॉजी पे हम आज के डेट में इतना काम कर रहे हैं, coming not from technology backgrounds, but हम इतना आज काम कर रहे हैं कि आज काफी कुछ समझ आनी शुरू हो गई. So that is where it gives us that confidence कि like she said आने वाले 5 साल में we are looking at 100 other non-metro cities in India. And you will grow through franchising. Part of it, yes. तो यूनिट इकोनॉमिक्स काम कैसे करते हैं आपके बिजनेस में? Sir, end of the day we all are dependent on the riders. हाँ. चाहे मेरे clients हो, चाहे हम खुद हो. ठीक है. So they have to make money. So we figured out कि for example एक food delivery giant है, उसकी number of deliveries जो मैं break even पे लेके आती हूँ वो बहुत different है e-commerce giant से. Okay. Similarly, क्विक कॉमर्स कंपनी जो भी क्लाइंट है मेरा, उसकी नंबर ऑफ डिलीवरीज का ब्रेक इवन नंबर अलग है. लेट्स से एक्स क्लाइंट के अंदर 18 डिलीवरीज के ऊपर मैं प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ.
Okay. And rider is also making good amount of money. Let's say about 15 to 18,000 rupees a month in a non-metro city. That is the minimum I'm talking about right now, because Okay. my riders are making 50 to 55,000 as well. Okay. The riders are on the top of the pyramid. Hmm. So a Y client है मेरा, उसमें से 25 डिलीवरीज के बाद हम प्रॉफिटेबल हो जाते हैं. So this is what we, in the last 2 years we worked on, and we found out numbers for each and every client. And once we crossed these numbers, उसमें मेरे सब खर्चे निकल गए. राइडर मेरा कुछ अच्छा पैसा बना रहा है, मेरे व्हीकल की कॉस्ट निकल गई जो हम एक एसेट लाइट मॉडल पे है, तो इट्स लाइक एन EMI और लीज रेंट यू पे फॉर 3 years, वो निकल गया. मेरी हब कॉस्ट निकल आई जो हम आपके रेंटल्स भरते हैं. Similarly, my admin cost, my office cost, everything else. So this is what we sorted it out. And that is what gave us a lot of confidence, because it's some achievable numbers. So somewhere we believe, यूनिट इकोनॉमिक्स पे काम करते करते हमने ये रियलाइज किया कि द सेंटर इज राइडर, वो पैसा अच्छा बनाना चाहिए, वो पैसा बनाएगा तो मैं पैसा बनाऊंगा. सो दैट इज व्हाई दैट हैज गिवन अस सो मच कॉन्फिडेंस कि हम स्केल कर जाएंगे, यूनिट इकोनॉमिक्स सेट हो जाएगी, फ्रेंचाइजी पार्टनर भी पैसा बनाएगा, हम भी पैसा बनाएंगे. मोर इंपॉर्टेंटली, the customer is happy and the riders are happy. So your rider is what? It's a fixed cost structure for you, or how does it work? सर इसमें क्या होता है कि अगर हम उसको फिक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर में रखेंगे ना, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम. व्हाई? क्योंकि वो कहीं ना वर्किंग आवर्स आ जाते हैं कि आपको 26 दिन काम करना है, इट लिमिट 8 आवर्स की शिफ्ट होनी चाहिए, फिर ओवर टाइम आ जाएगा, फिर बहुत सारे कंप्लाइंस आ जाएंगे. तो राइडर्स आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज अगेन फ्रॉम द बैकग्राउंड दे कम, उनको हर चीज उनके हाथ में चाहिए. उनको आज हाथ में कितना पैसा आप रख रहे हो, आज का देखना है, कल का नहीं देखना. सो अगेन दिस लिंक्स टू यूनिट इकोनॉमिक्स अगेन. फॉर एग्जांपल, राइडर्स जो पार्ट टाइमर्स भी हमारे पास आते हैं, तो वो मेरा व्हीकल यूज कर रहे हैं पर पूरा दिन यूज नहीं कर रहे हैं, पर मुझे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहिए. अगेन टेक हेल्प्स, बट लिंकिंग टू यूनिट इकोनॉमिक्स मुझे ये देखना है कि उस व्हीकल पे अगर वो फॉर एग्जांपल एक फूड डिलीवरी जायंट से काम कर रहा है, Correct. वो व्हीकल, तो उस पर 2 या 3 राइडर काम करनी चाहिए पूरे दिन में. 2 riders on a single vehicle is feasible. Okay. It is 2, right? Yeah. Okay. The third is a possibility, 100% possibility, but 2 is compulsory. वो ही जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. So for though it is smart way, that vehicle is not cost for you, because you it's a variable cost. You follow that asset light model. जी. So it's a variable cost, but if I believe rider cost is also now you have shifted to a variable part, which is Yes. probably appear to be a smart move than putting up the fixed cost structure part. इफेक्टिवली एक्चुअली द व्हीकल कॉस्ट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि अगर मैं EMI मॉडल पे जा रही हूँ, मुझे उस व्हीकल कॉस्ट को 2 राइडर्स पे डिवाइड करना है फॉर माय यूनिट इकोनॉमिक्स टू बी मोर. हाँ, understood. It's a fixed cost. Only the thing is you need to utilize Yes. on a daily basis optimum utilization of Optimum vehicle. utilization helps me to divide that cost Correct, between correct. 2 riders, and that is how my unit economics gets better and better. So vehicle का cost मेरा variable नहीं है, 2 riders के साथ 2 तो cost नहीं लगेंगे. एक व्हीकल से आप कितनी डिलीवरी कर सकते हो मैक्सिमम? सपोज फॉर एग्जांपल 2 राइडर्स टेक केयर ऑफ दैट व्हीकल इन अ सर डे. डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट. जैसे अगर ई-कॉमर्स की मैं बात करूं, तो एक राइडर 50 से डिलीवरीज कर सकता है 7 to 8 आवर्स के अंदर. बाकी टाइम आपके पास गाड़ी अवेलेबल है, बैटरी स्वैप कीजिए और एक फूड डिलीवरी जायंट के अंदर आप उसको डिप्लॉय कर दीजिए. उसमें वो 10-15 डिलीवरी कर पाएगा, डिपेंडिंग अगर वो 6 आवर्स दे पा रहा है और तो इस तरीके से इट इज डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ क्लाइंट द व्हीकल इज रनिंग अंडर. तो हमारे व्हीकल्स वी ट्राई कि हम उसको एक पर्टिकुलर क्लाइंट के अंदर ही चलाएं, पार्ट टाइमर्स के हिसाब से भी, सो दैट देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ यूनिट इकोनॉमिक्स पार्ट एज वेल. बिकॉज़ मुझे मेरी कॉस्ट व्हीकल की पता है, इवन दो माय यूनिट इकोनॉमिक्स पार्ट इट इज अ सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, क्योंकि एवरी 3 इयर्स मेरी व्हीकल फ्री हो जाती है. मुझे सिर्फ एक बैटरी चेंज करना है एंड व्हीकल चलता जाएगा. सो स्टिल एंड ऑफ द डे वी मेक इट अ पॉइंट कि हम एक व्हीकल कोशिश करते हैं कि एक ही क्लाइंट के अंदर चले, तो वो मेरा फ्री होता जाए, खर्चे निकलते जाए. बट वी डोंट फिक्स इट टू इट, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज बिजनेस. गाड़ी फ्री पड़ा है ना, चार्ज देना नहीं है, बैटरी स्वैप किया, दूसरे क्लाइंट में डाल दें. सो एंड ऑफ द डे व्हीकल पे कॉन्सेंट्रेट किया, राइडर ने ऑटोमेटिकली पैसा बना लिया, बिकॉज उसको मौका मिल गया, उसको ईवी इकोसिस्टम मिल गया एंड नंबर ऑफ डिलीवरीज करने के लिए. फॉर एग्जांपल मैं 1-2 डेटा आपसे शेयर करता हूँ. जैसे मेरे फूड डिलीवरी जायंट से मेरा काम चलता है जो स्विगी जोमेटो है, तो कहना क्या है, पैन इंडिया लेवल उनका एक एवरेज आता है करीब 12 डिलीवरीज पर डे का. इट्स एन एवरेज. सर हमारी एवरेज 18 है. तो मेरे ऐसे राइडर्स भी हैं जो दिन में 50 डिलीवरी कर रहे हैं. 50 डिलीवरी जी, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर कर रहे हैं. हाउ विल दे मेक 55,000 रुपीस? मेहनत So करते we हैं. are proud to say on that part कि हमारे ही राइडर्स हैं जिनने पैन इंडिया रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं फॉर
right now almost all clients, almost all clients. Yes. Swiggy में, Zomato में, Big Basket में. Blue Dart. So the beauty is we are not metros, ठीक है. We are in this tier 1, tier 2 cities जहाँ पे actually question होता है डिमांड को लेके, ठीक है. बट अगर वही मेरा राइडर जो आइस इंजन व्हीकल पे भी नहीं है, राइट, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे है, वो tier 1 सिटी में से है एंड वो पैन इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर पा रहा है. सो देर इज मार्केट, ठीक है, देर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी. इट इज ऑलवेज हाउ यू आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग इट. ये सर्विस इंडस्ट्री की ब्यूटी ही एग्जीक्यूशन है. हम उन राइडर्स को किस तरह से पुश कर पा रहे हैं या मोटिवेट कर पा रहे हैं टू रीच दैट नंबर, राइट. दैट इज हाउ. और ये कॉन्फिडेंस हमें भी लास्ट 6 months में आया है. दैट इज वेयर वी नो कि अगर मेरे कुछ राइडर्स ये कर सकते हैं ना, तो मेरे जो मिडिल पिरामिड वाले हैं ना, दे कैन एक्चुअली गो टू दैट हायर पिरामिड. और उनको वी अंडरस्टूड हाउ टू पुश देम. अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिटी में खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स सम मे बी 3000 स्क्वायर मीटर एरिया एंड अदर स्टफ इन द मिडल ऑफ सिटी, ठीक है. अब मुझे आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर हर एक फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, एवरीबडी हैज सम बिजनेस टू डू, राइट. सो देयर इज एनीवे डिमांड फॉर द राइडर्स. मेरे पास एनीवे फैसिलिटी है. हाउ कैन आई बी योर फ्रेंचाइजी पार्टनर एंड व्हाट इज देयर फॉर मी? Yeah, I think Pragya, we should take this up. I'll She's the one who's designed it. नहीं, ये I don't know whether you have worked on it, but just it's out of curiosity. So it's, this plan is in a very nascent stage as of now, but exactly अगर आपने देखा डोमिनोज हो या ठीक है ये जो भी फ्रेंचाइज, वो सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि उन लोगों ने पूरा का पूरा ऑपरेशंस फ्रेंचाइज ओनर पे नहीं डाला, ठीक है. नहीं वो तो मैं देखिए मुझे एक फाउंडर बता के गया था who was working on a franchisee. Then मैंने उसको सिंपल ये पूछा था कि वो फ्रेंचाइजी पार्टनर को नहीं आएगा तो क्या करेगा. He does not know how to do business, right? Correct. तो उसने मुझे एक बहुत साल पहले समझाया था कि सर फ्रेंचाइजी वाला बंदा कौन होता है पता है? सबसे आलसी इंसान होता है ना, वो फ्रेंचाइजी वाला होता है. कि भाई मुझे कुछ आपका दे दो, आपका ब्रांड दे दो, आपकी टेक्नोलॉजी दे दो, आपका मटेरियल दे दो, आप बोलो तो मैं 4 लोग हायर कर लूंगा, आप उसको ट्रेन कर लो, ठीक है. यही मॉडल है. सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर फ्रेंचाइजी है तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि चलो मैं वो आलसी इंसान हूँ जिसके पास 5000 स्क्वायर मीटर आप अगर जगह चाहिए तो उतनी जगह मेरे पास है, ठीक है. वो जगह है, चाहे मैं रेंटल ले लूँ, कुछ भी ले लूँ. आप अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा और ये अगर मैं करूँ सिटी लेवल पे, राइट, तो व्हाट इज देयर फॉर मी? एग्जैक्टली यही बंदा चाहिए सर, ठीक है. क्योंकि मुझे नहीं चाहिए उसको ये इंडस्ट्री समझ आती हो, क्योंकि वो खुद स्टार्ट कर सकता है. दो डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू गेट इनटू दिस बिजनेस क्योंकि नुआंसेस बहुत सारे हैं. तो ये मैं उसको एक प्लेटफॉर्म दे रही हूँ सर, राइट. प्लेटफॉर्म है, रेडी प्लेटफॉर्म है बिजनेस के लिए, रेडी प्लेटफॉर्म है इंफ्रा के लिए. ये सब कुछ हम उसको देंगे, ठीक है. अगर आप हैं सर, आपने जैसे कहा आपके पास एक स्पेस है, आपको वो स्पेस देनी है, आपको व्हीकल्स में इन्वेस्ट करना है क्योंकि मुझे आपका स्किन इन द गेम चाहिए. हाँ बिल्कुल, वो आप बता दो, वो मैं कर दूंगा. यू हैव टू इन्वेस्ट इन दी व्हीकल्स, ठीक है. आपकी जगह है, बाकी पूरा हमारा है. हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू हैंडल दीज मेनी व्हीकल्स हम बताएंगे, ठीक है. उनकी हायरिंग भी हम आपको हेल्प करेंगे. पूरा टेक्नोलॉजी हमारा होगा, प्लेटफॉर्म हमारा होगा. राइडर को किस तरह से इंसेंटिवाइज करना है वो प्लान हमारा होगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरह से हैंडल करना है वो हमारा होगा. सो वी आर डूइंग द होल ऑफ दिस प्रोसेस फॉर यू. आपका इंफ्रा, आपका क्या है, आपका इंफ्रा एंड आपके व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट है. एंड देयर विल बी आरओआई ऑन. यस. ओके, तो मुझे शांति से बैठ जाने का है फिर. नहीं. सो इसके लिए वही है नहीं, मैं जस्ट समझना चाहता हूं. व्हाट वी हैव डिजाइन्ड इज कि आपका स्किन द गेम सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो देयर इज 2 पार्ट्स ऑफ इट. एक होता है कि भाई फ्रेंचाइज में से आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी, ठीक है. दैट फिक्स्ड इनकम इज कि क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपको एक आरओआई मिलना चाहिए, एक नॉर्मल ब्याज की गिनती कि भाई मेरे इन्वेस्टमेंट में मेरे को ब्याज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है. उस ब्याज से ऊपर, ठीक है, आपको जब एक इन्वेस्टमेंट से रिटर्न अर्न करना है तो यू नीड टू इवन गेट इनटू द बिजनेस. सो आपको डेली मैनेज करना है कि ये जो लोग एम्प्लॉय किए ये काम कर रहे हैं, ये राइडर्स काम कर रहे हैं, वो हब पे मेरी व्हीकल्स मेंटेन हो रही हैं. तो डेली ऑपरेशंस में आपका प्ले है. यू गेट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स. तो पहले आप मुझे हेल्प करोगे प्रॉफिट अर्न करने में एंड फिर उस प्रॉफिट का एक पार्ट लेके जाओगे. सो मेरा काम है, सो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एनीवे इट विल बी टेकन केयर ऑफ.
but I need to see physically the vehicle condition, driver, and Yes. the vehicle timely charge for that. Maybe I can delegate some responsibility to particular guy who can take care of those things, right? yes. So Or maybe you can train those people, we right? will do all of that. Okay. मैन पावर ट्रेनिंग भी मैंने बोला हम है, एम्प्लॉय उनको एम्प्लॉय किसको चूज करना है, किस पोजीशन पे रखना है, वो भी हम करवा रहे हैं. Okay. बट यू आर माय आई इन दैट सिटी, Understood. राइट? क्योंकि आप सिर्फ हमारा एक रेप्लिका बन रहे हैं वहां पे. रेस्ट ऑल द प्रोसेसेस आर सेम, जिस तरह से हम सिटीज ओपन कर रहे हैं. बट बिकॉज यू आर डूइंग दैट वर्क फॉर अस, यू गेट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स. Understood. मतलब we try to stay away from very आलसी people. नहीं I understand. वो समझ गया, बट द पॉइंट इज के ये तो मैं फ्रेंचाइजी के बाय डिजाइन आई टोल्ड के हु इज एलिजिबल टू बी ए फ्रेंचाइजी ओनर. तो फ्रेंचाइजी देने वाला वो ये सोचता है कि ही इज अ गुड इन्वेस्टर, राइट? हु इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ही इन्वेस्ट इन फैसिलिटी इन अदर स्टफ. बाकी तो जो फ्रेंचाइजी देने वाला है उसको अपने आप पर भरोसा है कि भाई मेरी टेक्नोलॉजी, मेरी प्रोडक्ट, मेरी एसओपी एंड माय एबिलिटी टू ट्रेन पीपल is what makes me a business owner, and franchisee owner is a partner to take care of that small operation. True. And it's a win-win, always win-win. True. So you may say that he might not get on the ground every day. हाँ, Like नहीं you नहीं, said, वो हमें आपने भी- ट्रेन कर दिया एक ऑपरेशन जी। वाले को वहां, तो वो Yes, करेगा. yes, yes. So ठीक है? SOPs is something that we very very firmly Is believe in. there any downside for a franchisee partner? So ले effectively, मैं फ्रेंचाइजी ओनर हूँ, ठीक है? मैंने आपने बोला कि इतना प्रीमाइस होना चाहिए, तो प्रीमाइस मेरे पास है. लकीली बहुत सारे लोगों के पास होता है, ठीक है? आपने बोला कि भाई यहाँ पर एरिया में 300 व्हीकल की डिमांड होगी, तो 300 व्हीकल लगा लो. मैंने 300 व्हीकल लगा लिए या फाइनेंसिंग पे ले लिए, ठीक. एंड देन द पॉइंट इज व्हाट आई बिलीव, द राइडर्स जनरली अवेलेबल हो जाते हैं इफ द इकोनॉमिक्स आर इन प्लेस, ठीक है, विच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट. You are also confident about your partners whom you are contractually agreed, yes. and whose technology is inbuilt with your technology framework wherein the demand keeps on coming, right? तो अब ये अगर in place है, आपने अगर मुझे train कर दिया, मेरे people who are running operations, if they are trained, where a downside could there for me as a franchisee partner? सर डाउनसाइड तो कुछ भी नहीं है, सब अपसाइड ही है. And again, why confidently I'm able to say this or make such a statement is, sir, हम ground level के लोग हैं. We believe execution is everything. आप बड़ी से बड़ी कंपनी देख लीजिए, उसके कॉपी कैट्स भी आए और वो भी यूनिकॉर्न्स बन गए. तो ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा सब चीज कर सकता है. अगर आपका एग्जीक्यूशन अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो. आप वर्ल्ड का बेस्ट आइडिया ले आओ, एग्जीक्यूशन पुअर है, आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे. सो एग्जीक्यूशन एक सिंपलेस्ट ऑफ आइडिया के लिए और वर्ल्ड के बेस्ट आइडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है. एंड व्हेन यू कम टू लास्ट माइल डिलीवरीज और लॉजिस्टिक्स साइड, where there is operations obviously, again execution is everything, where your customer gets the best experience. So that is why we are confident कि coming back to the same point of SOPs, technology, उससे जो हमने डिजाइन किया है, उससे जो बिजनेस एग्जीक्यूट होगा, फ्रेंचाइजी वाला कभी बिजनेस लूज नहीं करेगा unless and until totally mess things up, which I think is less than 0.5%. Why again? Because it is not just again execution, business में दम है, मार्केट में सुपर डिमांड है. आज आप क्विक कॉमर्स देखिए सर, लास्ट 3 years में, इट्स इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है ये, ओनली इन 3 years खाली 4 कंपनीज इन क्विक कॉमर्स, उनका आज मार्केट 42,000 करोड़ का है. एंड डेलॉइट इज सेइंग, उन्होंने एक फोरकास्ट या प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले 5 to 6 years में ये 3.5 लाख करोड़ का मार्केट हो जाएगा. Only quick commerce. ओनली क्विक कॉमर्स. सर आज आप थोड़ा सोशल मीडिया पे भी जाएं तो सर 10 मिनट में आईफोन पहुंचना शुरू हो गया. ठीक है सर. अभी मैंने देखा यूएस पोलो विद ब्लिंकिट और ज़ेप्टो, वन ऑफ दोस कंपनीज, वो कपड़े डिलीवर करने शुरू कर रहा है 10 minutes में. हॉट व्हील्स का मैंने ऐड देखा, खिलौने 10 मिनट में डिलीवर होने शुरू हो चुके हैं. तो ये जो वेव आ गई है, दिस इज ट्रिमेंडस. और इनको केटर कौन करेगा? कोई भी इंसान काम खुद नहीं कर सकता, कोई कंपनी हर चीज खुद नहीं कर सकती, एंड दे आर नॉट लॉजिस्टिक्स पीपल. सो जिसका जो फोर्टे उसको करना चाहिए, तभी वो बेस्ट करता है. सो आवर बिजनेस मॉडल इज क्यों हर एक कोई कंपनी सब नहीं कर सकती? सर क्या होता है कि हिस्ट्री ने बताया है,
ई कॉमर्स कंपनीज ने और फूड कंपनीज ने भी, डिलीवरी जायंट्स ने भी खुद के राइडर्स रख के देखे हैं, Okay. एंड दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल. सो फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं आई एम वेरी गुड विद ऑपरेशंस, I would never, go and make a financial model. My forte is operations, number one. Number two, everyone wants to be asset light. Everyone wants to be operations light. For example, Airbnb, they don't own any property. They're a platform. Again, Ola, Uber, Swiggy, Zomato, what do they own? Nothing. So the era is of the enablers. तो वो कर रहे हैं जिसमें वो बहुत अच्छे, टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म, एग्रीगेशन, एक्सेट्रा. And they're looking for people like us who give them end-to-end services. तो आज आप मुझे पूछे तो मैं भी सिर्फ ऑपरेशंस में मैं डिलीवरीज ही करना चाहूंगा. सो कमिंग बैक टू अगेन ऑन द फ्रेंचाइजी मॉडल, कि क्या डाउन साइड ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज मैंने बिजनेस मॉडल क्रिएट करके बैठा है कि मैं सिर्फ क्विक कॉमर्स को सिर्फ नहीं देख रहा हूं, जबकि द वेव इज ट्रेमेंडस. नॉट जस्ट ई कॉमर्स, नॉट जस्ट फूड एंड ग्रोसरीज सर, क्योंकि मेरा हब मॉडल है, अगेन पार्ट ऑफ माई बिजनेस मॉडल. लॉजिस्टिक्स का इवोल्यूशन आप देख रहे हैं क्या हो रहा है. लास्ट माइल पहले लोगों को क्या था, इतना पता नहीं था. आज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है, सपोज कीजिए मुंबई से दिल्ली को सामान जा रहा है सर, 50% कॉस्ट इज लास्ट माइल कॉस्ट. मतलब मुंबई से दिल्ली तो गया, दिल्ली के वेयर हाउस से कस्टमर के दरवाजे तक जा रहा है, उसको लास्ट माइल कहते हैं, करेक्ट सर. 50% है उसकी कॉस्ट. सर मुंबई से दिल्ली जा रहा है बॉस, पर लास्ट माइल की कॉस्ट 50% क्यों है? पहले फर्स्ट माइल मिड माइल का क्या? सो दिस इज अगेन एन एवोल्यूशन. कुछ नई चीज आई, लास्ट में डिलीवरी बढ़ती गई, क्विक कॉमर्स आ गया फटाक से और इवॉल्व हुआ कि भैया कल डिलीवरी, परसों डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 10 मिनट में डिलीवरी. सो द इवोल्यूशन इज अगेन, इट्स पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक्स. व्हाट इज नेक्स्ट? ईवीज भी तो सर नया ही था ना. अब अगला है ड्रोन्स. पॉलिसीज आर स्टिल नॉट क्लियर, बट वंस दे आर क्लियर, प्रॉब्ली इन अ कपल ऑफ डेज. बाय द वे, डीटीडीसी एंड ecom express, they have started mid-mile deliveries through drones. And you can check it out online as well. So मेरा जो बिजनेस मॉडल है, जो हब मॉडल है, अगेन drones need a place to land inside the city. You cannot deliver consignment through drones in apartment buildings. Vandalism हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है. कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं है, कैश कैसे कलेक्ट करेगा? एंड अगर वो पेड भी है, उसको कोई लैंड भी करना है, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक बॉक्स डालना पड़ेगा, उसको एक अलग टैग क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे वो बॉक्स खुले उसके अंदर वो ड्रोन अपना कंसाइनमेंट रखे, एटसेट्रा एटसेट्रा. लॉन्ग वे टू गो. सो अगेन द बिजनेस मॉडल मेरा ऐसा जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है. मेरे हब्स इनसाइड द सिटी होते हैं, सो दीज ड्रोन्स कैन पिक अप द कंसाइनमेंट फ्रॉम द मदर हब्स व्हिच आर आउटसाइड द सिटी. उठाए मेरे हब पे लैंड किए, व्हिच आर अगेन इनसाइड द सिटी. मेरे राइडर्स आर रेडी विद द चार्ज्ड व्हीकल. They go and do the delivery to the end customer at their doorstep. जो ये दूसरे किसी मॉडल में नहीं है, जो मेरे सिमिलर बिजनेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. That creates another opportunity. Furthermore, लॉजिस्टिक्स में थोड़ा टेक्निकल है, but there is something called ODH मॉडल. वो क्या होता है? उसमें सर ऐसा है कि जैसे सपोज कीजिए मदर हब की मैंने आपसे बात करी, वो अच्छा सिटी ही रहेगा, बड़े बड़े होते हैं, 20, 25, 50 लाख स्क्वायर फीट वाले. क्यों? बिकॉज ट्रक्स सिटी में नहीं आते, लोडिंग एंड लोडिंग इश्यूज, इनसाइड आउटसाइड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये टाइम पे आ सकते हो नहीं आ सकते, वहाँ खाली होते हैं. वहां से फिर इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक्स होता है, और सिटी के अंदर ना डीसीज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स. वहां पे जाता है मतलब पिन कोड्स, ठीक है, और फिर वहां से जो राइडर्स होते हैं वो डिलीवरी करने जाते हैं. तो हमारा क्योंकि खुद का हब है, 300 to 500 स्क्वायर फीट स्पेस देनी होती है, एंड माई क्लाइंट्स वुड एम्प्टी दीज कंसाइनमेंट्स एट माई हब. आई गेट अनदर इनकम. सो एक और वर्टिकल मेरा क्रिएट हो गया. तो मेरे राइडर्स को उनके अभी डीसीज पे नहीं जाना है, मेरे हब पे ही उनको मिल जा रहा है. वही सेग्रीगेशन किया, रूट सेट किया, टेक की हेल्प से रूट ऑप्टिमाइज भी किया, और डिलीवरी करने चले गए. एक और सोर्स ऑफ इनकम मेरी शुरू हो गई. एंड अगेन बिकॉज आई एम वर्किंग विद ईवीज, वेरी सून द पॉलिसीज विल बी क्लियर ऑन द कार्बन क्रेडिट्स. टुडे इट्स अबाउट $16 to $18 अ क्रेडिट. हमारा वो भी जनरेशन होगा, वो भी सेलिंग होगा. सो एज आई सेड, देयर इज नो डाउनसाइड. एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है, tech and SOP strong है, and there are multiple opportunities that a franchisee owner can also make. तो that's why I mentioned earlier, अगर वो terribly कुछ बहुत गलत करता है ना, वो तभी mess up करेगा. नहीं तो I don't see a point कि वो क्यों mess up करेगा, because उसको multiple source of income create हो रही है. सर आज हम Swiggy Zomato की भी बात करें, they're not just doing deliveries of food, But right? Would your technology platform enable means allow it to go terribly wrong?
Sir, we are confident it should not because I नहीं mentioned earlier, हम ground के बंदे हैं. नहीं पॉइंट ये होता है कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर पार्टनर्स, Absolutely, sir. इट्स नॉट अ फ्रेंचाइजी ओनर. Correct, sir. And to that, I would say, sir, आज भी बहुत opportunities आई हैं. लोग social media पे आते, call करते हैं, हमें आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए, etc. हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि initial 5 to 10 cities, depending on how the technology is improving, the policies are getting clear, we would want to do it ourselves. And once that is done, that will give a confidence, a successful model, a successful company would give a confidence to the franchise owner. And then would give it to them. Which are the cities are you planning to go? सर अभी हम सूरत, अहमदाबाद और वडोदरा में हैं. Okay. इंदौर, भोपाल, नासिक, नागपुर, ये तरह की सिटीज हम टारगेट कर रहे हैं जो ग्रो करे जा रही है. स्मार्ट सिटीज के पार्ट भी हैं और वहाँ कोई देख नहीं रहा है, सब मेट्रोज देख रहे हैं. तो आई लव दिस लाइन बाय अमन गुप्ता, द फाउंडर ऑफ बोट. अपने एक सेक्टर का गुंडा बनना है, तो ये भी मैं बिलीव करता हूँ. तो ये भी एक रीजन हम मेट्रोज नहीं जा रहे हैं. हम वहां जा रहे हैं जहाँ कोई भी नहीं और ट्रेमेंडस डिमांड है. So your franchisee partner would be a छोटा गुंडा or what? सर मेरे से छोटा. So I just but- add a number over here. हाँ. एक there's a study which shows कि tier 1 cities में जो इकोनॉमी जो पीपल है they are spending almost 16% of their earnings on shopping. Okay. जब वही चीज मेट्रो में it is 6%. So इफेक्टिवली, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने इनकम का स्पेंड कर रहे हो उतना ही ज्यादा उस सिटी में कमिंग टाइम में लास्ट माइल की रिक्वायरमेंट है. क्योंकि अगर नहीं आप नहीं वो पॉइंट ये होता है कि वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं इसलिए 6% वर्कआउट हो रहा है, वहां पर बेचारे कम अर्न कर रहे हैं तो उसकी अर्निंग का 16% हो जाता नहीं, बट अगर आप इसको सर रियलिस्टिक टर्म्स में भी डाल रहे हैं, है. हाँ. so it is still bigger because what has happened is thanks to 8% plus GDP growth, Okay. thanks to aspirations, thanks to the youngest population in the world in India, वो मेट्रोज में ना थोड़ा बीन देयर डन दैट. नॉन मेट्रोज में एस्पिरेशंस आ जाती हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए. जैसे मैं छोटा एग्जांपल दूंगा, आई डोंट हैव द राइट नंबर्स बट स्नैपडील इज स्ट्रॉन्गर इन नॉन मेट्रोज देन मेट्रोज फॉर एग्जांपल. सेम आई वुड से फॉर मीशो एज वेल. इवन फ्रॉम द ब्लिंकिट पर्सपेक्टिव, ठीक है, ब्लिंकिट वाज एबल टू रीच 1000 डिलीवरीज पर डे इन नासिक में इन अ वीक. ठीक है, वही सेम चीज उसको मेट्रो में करने में मंथ लगा. 3 to rather it was 3 to 4 months in Mumbai to reach 1000 deliveries a day, and यहाँ I think 2 weeks में I think 2 weeks लगे थे. So that again shows you कि aspirations जहाँ ज्यादा है and spending power जहाँ आने लगी है जहाँ पहले नहीं थी वहाँ. But anyway, while you select any of the city, if it is not metro, you will study the demand part. Yeah, True. how many orders are being generated by each of the partners. Yes sir. ठीक है, आज के दिन में कोई और fulfill कर रहा होगा, but at the end of the day, while you enter into and you have a prior relationship with this partner, naturally your tech will come in play and will absorb some of the demands. सर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड है जो अभी केटर कर रहे हैं सब जायंट्स को. सो दैट इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी. हम काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में विद टेक इंटीग्रेशन, अगेन द एसओपीज एंड एग्जीक्यूशन वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, तो ये हमें एक बहुत बड़ी अच्छी मार्केट दे देता है. फॉर एग्जांपल हम सूरत के बाद वडोदरा शुरू कर सकते थे. क्लोजेस्ट सिटी है, लॉजिस्टिकली इजी हो जाता है मैनेज करना बिकॉज फाउंडर्स ही खुद जाके सेट कर रहे हैं, हर चीज हो रही है. वी वेंट टू अहमदाबाद फर्स्ट. डिमांड इज ह्यूमंगस. आज की डेट में अंदाजन खाली स्विगी जोमेटो 50 to 55,000 डिलीवरीज कर रहे हैं पर डे इन अहमदाबाद. लोगों ने सोचा भी नहीं था. लोगों को लगता है मेट्रो में हर चीज हो रही है. इट्स जस्ट अ पार्ट अबाउट एक्सपोजर वाली बात है या एक नॉलेज शेयर करने वाली बात है. तो अहमदाबाद में भी जब हमने हब्स ओपन किए, वी कुड हैव ओपन एनीवेयर, बट यू राइटफुली सेड एक प्रॉपर वे होता है. द वर्ड इज साइंटिफिक. ये कुछ प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं. उस हिसाब से एक हब ओपन हुआ, फिर टोटली ऑपोजिट साइड पे दूसरा हब ओपन हुआ, फिर एक तीसरा हब ओपन हुआ. सो इट ऑल डिपेंड्स कि मेरे एक तो क्लाइंट्स जो हायर पेइंग क्लाइंट्स हैं जिनका बिजनेस 6 months का नहीं मोर देन दैट है. फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेसेस हैं जो खाली सेल पे चलते हैं, भाई अब सेल आ गई है तो वो बहुत चलेगा. कुछ बिजनेसेस हैं जो 12 में से 11 महीने चलते हैं. तो हम वो उस तरीके से उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं. उनके कौन से पिन कोड में हाईएस्ट डिलीवरीज हो रही है, इश्यूज भी उनके कहाँ हैं वो हम देखते हैं, एंड दैट इज हाउ वी डिसाइड. तो ऐसे हम कोई भी सिटी शुरू नहीं करते थे. प्रॉपर डेटा के साथ, ज्योग्राफिकली कहाँ शुरू करना उसके साथ. सो
like you said rightly, there's a scientific way to do it, and that's how we do it. So maximum pin code coverage करने हमें every city में where we go, because that is what is the mode of delivery we say. ठीक है, क्योंकि where do you see yourself as a EV5 in next 2 to 5 years? 2 to 5 years, sir. Means, आप मुझे नहीं पता है आपके लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है, बट जस्ट सर एज प्रज्ञा मेंशन्ड, हमारा जो विजन है आने वाले 5 years के अंदर, we are looking at 100 cities to be not franchisee cities only, ours and franchisees together. And holistic vision आप देखिए तो सर मुझे ना 10 lakh minimum electric vehicles on road करनी है, 10 lakh. Also, I would like to share something here. Very recently, Surat, where we come from and where the HO is, where we started this, उसको एक award अभी मिला, cleanest air का, cleanest air, cleanest आबोहवा बहुत साफ हो गई सर सूरत की. And if you see the data, highest electric vehicles सूरत में sell हुए हैं. True. And we believe somewhere कुछ हमारा भी 400-500 गाड़ियाँ चल रही है सर सूरत में हमारी, तो कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ contribution है इसके लिए. I wanted to share this as well, that somewhere we feel proud कि हम सिर्फ बोलते नहीं कि environmental impact वाली बात है या social impact वाली बात है, करके दिखाया सर. No, from So, economics point of view, yeah. it makes sense. Means if you are using for commercial perspective, the EV has the plus in terms of economics. हाँ, एक चीज है कि there is always the range limitation, but probably you have solved with the battery swapping and other stuff. At our own hubs, yes. So Correct. that's why I told you the control over the value chain is what gives us the edge over anyone else in the market. That is what I would say. अब एक चीज अनयूजुअल है. जनरली क्या होता है, फाउंडर से मैं बात करता हूँ तो जब भी अगर नहीं भी पूछा हो या 2 से 5 साल का ग्रोथ प्लान पूछा हो कहीं पर भी, तो पता नहीं समहाउ वो वैल्यूएशन वाली बात कहीं ना कहीं फाउंडर ट्राई टू चिप इन, राइट, कि हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे वो हो जाएंगे. अब ये चीज क्यों नहीं आई अभी तक? सर बहुत कन्वेंशनल बिजनेस माइंडसेट है. हाँ. शायद मैं चौथी 5वीं बार बोल रहा हूँगा, बट अच्छा एग्जीक्यूशन आपने कर लिया, ऑटोमेटिकली अच्छा धंधा बनेगा. तो वी कुड हैव गॉन इन द मार्केट, एक प्री सीड कर लेते, प्री रेवेन्यू भी बहुत कुछ आजकल मार्केट में होता है. हमने खुद का पैसा डाला, वी हैव आवर स्किन इन द गेम. 2-5 लाख में सर 50 लाख डाला है बिजनेस में. वी हैव आवर स्किन इन द गेम, खुद रिस्क लिया. इनिशियल व्हीकल्स भी हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव से डलवाई, ऐसा नहीं मार्केट में थर्ड पार्टी को लेके. धोखे वाली बात नहीं बॉस, खुद किया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर जाके अगेन रेवेन्यू जनरेट किया, क्लाइंट स्कोर किया, फिर जाके हम मार्केट में गए कि चल बॉस अब फंड रेज करके अब फास्ट ग्रो करना है. अभी भी प्रज्ञा डिड मेंशन दिस अर्लियर, क्योंकि इनिशियल क्योंकि अ बिट ऑफ इंफ्रा हेवी बिजनेस है एंड वी वांट टू मेक इट ऑपरेशंस लाइक थ्रू टेक अगेन. तो हम ना भी वो प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. रूट्स हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, तभी पेड़ सॉलिड रहेगा और बड़ा होता रहेगा. सो अभी जो हमारे 3 साल निकले इसी में निकले हैं. Probably another 6 months to 12 months where our technology would get, the platform would get further optimized. उसके बाद probably I would say कि हम actually claim कर पाएंगे कि thanks to execution there is a huge opportunity that we have created, and sir where there is opportunity valuation खुद आएगा. वैल्यूएशन वही, इट्स अ बाय प्रोडक्ट. एंड डेफिनेटली हम उस इंडस्ट्री में हैं. अगर हम स्टार्टअप है, हमें फंड्स कॉन्स्टेंटली रेज करने हैं, ठीक है, बिकॉज एट द एंड कन्वेंशनल बिजनेस में भी आपको स्टार्टिंग में कैपिटल डालना होता है, ठीक है. आप प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसका एक ROI देखते हैं. दैट्स हाउ कन्वेंशनल बिजनेसेस वर्क. स्टार्टअप में इट्स अबाउट इनिशियली शायद 2 से 3 साल आप कुछ बर्न करेंगे. That burn is basically the amount that you have invested on infra, on tech, on team. Okay, that is what is the pillars that you're creating, and that will start giving results from the 4th year. Right, that is where we are. हमने starting में last 3 years में we have invested on all these parameters. Currently, yes, we are in the market. We are again looking for funds because आज अगर हम जहाँ हैं, वी आर अराउंड लाइक 700+ vehicles, ठीक है. बाय द एंड ऑफ द ईयर वी नीड टू रीच 1000, बाय द नेक्स्ट ईयर वी नीड टू रीच 5000, राइट. सो ये नंबर्स क्लिक करने के लिए वी नीड टू इन्फ्यूज फंड्स एट पॉइंट्स ऑफ टाइम, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, राइट. सो करंटली फंड रेज के लिए करंटली फंड रेज कर रहे हैं. इट इज आवर 3rd राउंड ऑफ फंड्स. ओके. एंड जो हमने पहले भी डिस्कशन किया, फ्रेंचाइजी
तब देंगे जब उनको भी दिखेगा कि भाई सॉलिड बिजनेस बनाया है, वहां पहुंचने के लिए सर लगता है. And to reach that level of operations light model, and again on an infra heavy model, you need funds कि आप फास्ट ग्रो कर सके. नहीं तो सर फिर क्या होता है ना कि कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर और एक स्टार्टअप में क्या फर्क हुआ, अगर आप स्केल नहीं कर सके, जॉब्स क्रिएट नहीं कर सके, कुछ टेक्नोलॉजी प्ले नहीं कर सके, तो फिर आपने क्या किया? नहीं, वो क्लियर है So, कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी, सिस्टम, प्रोसेसेस, इकोनॉमिक्स आर इन प्लेस, इफ यू हैव प्रूवन एट अ स्मॉलर लेवल and if you believe that it can be repeatable and scalable across different cities, if the behavior would be same, the demand would be similar, then naturally why one should not scale. अब पॉइंट ये होता है कि एवरी सिटी यू ओपन अप, राइट, ठीक है, वो मैथमेटिकली हम ऐसे ही लॉजिकल बता देते कि नो ब्रेनर चल गया, राइट, बट वैसा होता नहीं है. पॉइंट ये होता है कि जैसे ही द मोमेंट यू गो इन 3 अदर सिटीज, वो 3 सिटीज में जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि पॉइंट ये होता है कि इनिशियल एक्सपेंडिचर में भी 3 to 4 months यू वुड बी इन्वेस्टिंग इन पीपल, यू वुड बी इन्वेस्टिंग इन इंफ्रा, यू वुड बी इन्वेस्टिंग, एंड वो खर्चा लगता है. तो इसीलिए अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि आप 1 or 2 cities में आप अच्छा कर रहे हो एंड यू कैन रेप्लिकेट इनटू 20 अदर सिटीज, देन 50 अदर सिटीज, ऑलवेज वन शुड गो फॉर वेंचर कैपिटल फंड. सर भाई we have come to that conclusion कि हाँ, yes, नहीं, वो पॉइंट ये होता है, देखो हाँ. सिंपल है. मैं हमेशा फाउंडर्स को बोलता हूँ कि पहले ट्रायल कर लो एक छोटा लेवल पे, मेक इट सच अ स्मॉल, एंड एवरी बिजनेस मॉडल छोटा लेवल कुड बी अ डिफरेंट डेफिनेशन, बट इन माय ओपिनियन इररेस्पेक्टिव ऑफ मॉडल, वो छोटा लेवल वो होता है कि जिसमें डाउनसाइड अगर हो भी जाए तो भी क्या होता है कि देयर इज नॉट मच रिस्क इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, एंड यू अचीव इट फास्टर. मुझे लगता है कि वो स्केल आपने अचीव कर लिया. इफ यू डू इट देन यू गो एंड स्केल. कभी कभी रेजिस्ट भी करना पड़ता है. बहुत सारे फाउंडर क्या होता है कि लार्ज मार्केट है तो नीचे लाइन ऑटोमेटिकली गिवन है कि स्केलेबल है, बट वो स्केलेबल नहीं होता है. लार्ज मार्केट डज नॉट मीन इट इज स्केलेबल, ठीक है. यू नीड टू हैव राइट टेक्नोलॉजी, सिस्टम, प्रोसेसेस टू स्केल इट अप. ऐसा होता है कि 1000 डिलीवरी तो कर पा रहे थे लेकिन 50,000 नहीं हो पा रही है, वो टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है, या टेक्नोलॉजी में कुछ चल रहा था लेकिन द मोमेंट यू आर बर्निंग मनी इट्स नॉट वर्किंग आउट बिकॉज देर आर पिलफरेज. आपके कस्टमर उस टेक्नोलॉजी को प्ले कर रहे हैं, आपके लोग प्ले कर रहे हैं. पॉइंट ये होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप गलतियां कर लेते हैं जब कोई भी लार्ज मार्केट और आप पेन पॉइंट सोल्व करते हो तो इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज अराउंड, ठीक है. 10 इन्वेस्टर मना कर देंगे, देयर कुड बी 11th इन्वेस्टर हु पुट इन मनी, उसको देख के और 2-4 इन्वेस्टर डाल देंगे. बट द पॉइंट इज, और फिर क्या होता है, टेम्पटेशन होता है कि भाई मैं तो 2 सिटी में सोच रहा था, अभी मैं 20 सिटी में कर लेता हूँ क्योंकि पैसा है, तो आई नीड टू कैच अप दैट वैल्यू एंड ग्रो मोर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. सो जो वैल्यूएशन की रन रेट रेस लगती है ना, वो फाउंडर मैनेज नहीं कर पाता क्योंकि टेक्नोलॉजी मैच्योर नहीं है. True. अगर आपका टेक्नोलॉजी, सिस्टम, प्रोसेस, यूनिट इकोनॉमिक्स आपने अगर एक छोटे लेवल पे मैच्योर नहीं किया है, फॉरगेट, स्केलेबल नहीं है वो. ठीक बात है सर. ठीक है, आप फिर 20 सिटी में वो गलती करोगे, वो मैनेज ही नहीं कर पाओगे, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे एंड स्केल नहीं आएगा. आई बिलीव द सेम सर. फिर ऐसा हो जाएगा कि 1 रुपए के रेवेन्यू के लिए आप 10 रुपया बर्न कर रहे हो, 20 रुपया बर्न कर रहे हो, फिर वो हो जाएगा. नहीं, आपका बिजनेस मॉडल क्या है कि it is a large market and the good part is there is a demand which is pre-existing. वो चाहे आपके जितने भी पार्टनर हो, and good part for this is कि it's not one partner, you are partnering with maybe 10, 12, 15 partners. तो and you are leveraging with the technology, तो डिमांड तो आती रहेगी, ठीक है, डिमांड आती रहेगी. you are relevant for all of them, you are not dependent on one of them. वो डिमांड आती रहेगी. आपकी अगर एसेट यूटिलाइजेशन होता रहेगा, विच आर योर व्हीकल, राइट, वो होता रहेगा तो आपके राइडर को भी आप पैसे देते रहोगे, ठीक है. सो इट इज विन फॉर एवरीबडी, फॉर योर पार्टनर्स, फॉर योर राइडर्स एंड ऑफ कोर्स फॉर योर सेल्फ, राइट. अगर आपने वो एक सिटी पे कर लिया एंड विच द कॉन्फिडेंस इज वेरी विजिबल कि एक सिटी पे हो गया एंड दैट इज हाउ यू स्टार्टेड टू अनदर सिटी. ऑलवेज ये चीज होता है एंड कि धंधे की बात आती है, धंधे की तरह सोचते हैं कि भाई पैसे ही क्यों उठाना किसी से, बट द पॉइंट इज वन नीड टू स्केल टू मे बी 20 अदर सिटीज इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन टेक्नोलॉजी
एंड मैं किसी को भी बोलता हूँ फाउंडर को कि पहले अपने आप को पूछो कि भाई मेरी टेक्नोलॉजी, सिस्टम, प्रोसेसेस वो काम करेंगे चाहे मैं सो जाऊं, ठीक है, चाहे देवऋषि बिजनेस में आए नहीं, फॉरेन टूर में 1 महीना चला जाए, उसकी सिस्टम प्रोसेसेस वगैरह काम करेंगे। अगर प्रज्ञा ने अगर यूनिट इकोनॉमिक्स और बाकी सब चीजें सेट कर ली कि भाई इतनी डिलीवरी होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, एंड पॉइंट ये होता है कि हर एक एरिया आपने जियो फेंसिंग कर दिया, राउटिंग कर दिया, ये वो वगैरह, फिर टेक्नोलॉजी करती रहेगी राउटिंग डेली बेसिस पर, राइट। तो अगर ये कर लिया तो पॉइंट ये है कि द कल्चर बिल्ड होता जाता है, ठीक है, आपके अंदर कल्चर बिल्ड वैसे हो जाता है, आपके ऑपरेशंस के लोग, आपके बाकी सब जो इकोनॉमिक्स देखने वाले फाइनेंस लोग हैं वो वगैरह सारी चीजें कल्चरली अंदर ग्रो हो जाती हैं। तो इट्स ऑलवेज लर्निंग थिंग। It's always learning हाँ। process, sir. और दूसरी मेरी ऑलवेज, क्योंकि हमारा काम ये होता है, वी कीप ऑन टॉकिंग पीपल लाइक यू, राइट। हर एक डिफरेंट सेक्टर्स में जो बिजनेस मॉडल ओवर ए पीरियड ऑफ ट्राइड होते हैं, राइट, हर एक सेक्टर में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, एंड यू अप्लाई इन दिस, राइट, तो वो भी चीज बहुत मटेरियल हो जाती है। I agree, sir. Sir, I also have a counter question. Actually, just हाँ, one question for you. हाँ, उल्टा करते सर, हम थोड़ा होस्ट बन जाते हैं। नहीं नहीं ठीक है। सर, JDFL ने हम पे इन्वेस्ट क्यों किया? आपके केस में क्या है कि यू आर अ ट्रांसपोर्टर, आपके जीन्स में ट्रांसपोर्ट है, एंड द पॉइंट इज आपने जितनी भी बातें हमने वी हैड इनिशियल डिस्कशन, इंटरेक्शन, तो उसमें क्लियर कट स्मेल आ जाती है कि इस बंदे को हर एक चीज की पता है कि धंधा कैसे होता है, कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, व्हीकल क्या होता है, व्हीकल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करता है, इवन इफ इट इज नॉट योर फिक्स्ड मीन्स हेवी कॉस्ट बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग द एसेट इन योर बैलेंस शीट, ठीक है। आप किसी और से फाइनेंस करवाते हो, यू आर अर्निंग अ बर्डन, बट एट द एंड ऑफ द डे इवन आप जो फिक्स पोर्शन महीने का पे कर रहे हो, यू सी के यू नीड टू मेक इट वर्क, ठीक है। तो हमने ये क्लियरली समझ में आया कि ये बंदा है जिसको ये हर एक कॉस्ट स्ट्रक्चर दिमाग में घूमता रहता है, और रियल टाइम इकोनॉमिक्स कैसे काम करना चाहिए, चाहे वो डिलीवरी पार्ट हो, चाहे राउटिंग पार्ट हो, चाहे ऑप्टिमाइजेशन पार्ट हो, चाहे इकोनॉमिक्स पार्ट हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे अच्छी लगी, जो मैं हमेशा फाउंडर में देखता हूं कि इज इट समथिंग अ फाउंडर इज थिंकिंग ऑफ ए विन विन मॉडल। मैं बिलीव मी जितने भी स्टार्टअप्स मुझे आते हैं ना, वो मॉडल पोर्ट्रे और रोजी भी लगता है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा मॉडल क्रिएट करो विच इज अ सेल्फ सेंटर्ड, तो वो रोजी लगता है सुनने वाले को। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब ये हुआ कि इट इज विन फॉर मी, बट अगर उसको एज ए थर्ड पार्टी में देखता हूं, एंड इट्स अ हार्ड लेसन्स विच आई लर्न कि वो सेल्फ सेंटर्ड प्लान सुनने में अच्छा लगता है, बट इफ इट इज नॉट विन 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 तो वो काम नहीं करता है, वो स्केल नहीं करता है। और आपके पास वो क्लियरली वो दिख रहा था कि इट इज विन फॉर माई पार्टनर्स, विच पार्टनर्स कुड बी 10, 15, 20, ठीक है, वो ग्रो होते रहेंगे। इट इज विन फॉर देम, इट इज विन फॉर माई राइडर्स, एंड हेंस इट इज विन फॉर मी। तो वो चीज क्या होता है कि वो वही बात इंसान कर सकता है कि जिसको ये धंधे की समझ हो। एंड इवेंचुअली आई टेल एवरी फाउंडर कि इंडिया इज अ कंट्री के जहां पर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, तो हम पहली बात ये करते हैं कि आप पेन पॉइंट सोल्व कर रहे हो कि नहीं, ठीक है, आप पेन पॉइंट सोल्व कर रहे हो या आप बिजनेस मॉडल लेवल पर कुछ इनोवेशन कर रहे हो, ठीक है। इंडिया इज फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ पेन पॉइंट, राइट। तो आप कोई भी सेक्टर उठा लो, देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। टेक्नोलॉजी विल हेल्प यू सॉल्विंग ए पेन पॉइंट, एंड इफ यू डू इट विद द टेक्नोलॉजी यू कैन स्केल। तो आप कर रहे हो और मुझे दिख रहा है कि इफ यू कंटिन्यू डूइंग इट, ठीक है, देन देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट बी सक्सेसफुल। तो हमने आपका देखा, ठीक है, और साथ में प्रज्ञा का देखा कि भाई पॉइंट ये है कि हाँ देयर इज अ ऑपरेशन गाय, बट देन देयर इज अ को-फाउंडर हु कंट्रोल द इकोनॉमिक्स पार्ट। जब ऑपरेशन हेवी बिजनेस होता है ना, तो इंसान एक लेवल पर पॉसिबली फॉल्टर करने लगता है। तो देयर हैज टू बी समबडी हु कंट्रोल्स, हु चेक इकोनॉमिक्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है। तो हमेशा फाउंडर में मीन्स पहले हम भी इन्वेस्टमेंट करते थे, सोलो फाउंडर में भी किए, टीम होती है उसमें भी, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लर्निंग हो गई कि जहां पर कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल सेट हो, एवरी बिजनेस वुड हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपके केस में कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल में
one is a operation guy who understand the operation, one is the person who understand the finance, economics and everything. वो combo है, ठीक है. And you have created good जो भी किया है अभी तक, so it should scale. Correct. Thank you, sir. Thanks for Thank you this. very much. So this is what has happened. So if this idea has worked out, that has been because of the support we have received at every single stage, right? Angels के टाइम पे वो small amount चाहिए था, तो वो उस टाइम पे वो perfect थे. So gradually every business needs that hand holding as an external support, and because of this hand holding and the connects that we get, right, eventually the business grows. So this is what we are looking in the future as well, to get some more validation and those kind of people who can. So it is not just the money. I always believe that investors जो हमारे साथ connect होते हैं, ठीक है, it is never just the money, but it has to be the same ideology. अगर ये concept समझ आएगा, ये thought process, ये business click होगा, and we believe in the same vision, then only we guys are putting up something beyond money, right? And that is what would really make a startup, reach the extra X जो उसको मिल रहा है. That is really important because of these partnerships that happen, and we are really glad to have you for the last couple of months, because we have learned a lot from you, from Kamal sir. So हमारे लिए एक learning curve था sir, from last couple of months जहाँ से हमने start किया till this day जहाँ हमारे साथ में बैठ के ये podcast shoot कर रहे हैं आपके साथ. We have been fortunate enough to have you on our cap table, and eventually from every single lesson from you that we have got, we are growing, and thanks for having us today, and thanks for having us before. Thank you. I really believe, sir, I've heard this many times कि ठीक है, literally to the women entrepreneurs actually. नहीं, एंटरप्रेन्योर जर्नी रिवॉर्डिंग है लेकिन डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है. ऑपरेशन हेवी बिजनेसेस में इसका डायलॉग बहुत सही लगता है. रोज आके बोलते हैं हम आग बुझाने आए हैं. हम जो भी एंटरप्रेन्योर अगर बोलते हैं ना कि सर ये तो कुछ नहीं, इजी है, हो जाएगा, ये तो टेक्नोलॉजी है, तो हम समझ जाते हैं भाई द फीट्स आर नॉट ऑन ग्राउंड. एंटरप्रेन्योर जर्नी बहुत मींस ऑपरेशन हेवी बिजनेस में इट इज टू मच डिमांडिंग, बट द पॉइंट इज अगर आप सही काम करो तो रिवॉर्डिंग है. बिल्कुल. अगेन तो लाइन मैं मारता रहता हूँ ऐसे, जैसे कि हम आग बुझाने आए हैं, वैसे एक लाइन और भी मारता हूँ मैं कि हम जहाँ बैठे हैं ना, इट फील्स लाइक वी आर सिटिंग ऑन अ थ्रोन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड wearing a crown as well, but it's of thorns. कांटों का मुकुट है और तलवारों का सिंहासन है. लग रहा है कि राजा है पर लगी पड़ी नहीं. सो द पॉइंट इज के बाहर के लोग आपको, सो you need to think about yourself like a king. You need to set a perception in public you are king. ठीक है. ये दोनों चीजें एंटरप्रेन्योर जर्नी में पॉसिबल है. ठीक है. Nice listening.